Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine and healthy. So, students, today I am going to start to introduction what is a square root. So, we come across some problems like that. Area of a square is 144 centimeter. What would be the side of square? What would be the side of square? You all studied in 7th standard, students. Area of square is equal to side square. So, area of square is given, student. Let side of a square be A, then area of square 144 is equal to A square. Students, so to find the length of side, students, to find the length of side, it is necessary to find a number whose square is 144. A number whose square is 144. And another example, student, second one, if x square is equal to 49 is given. If x square is equal to 49 is given, then find the value of x. We need again to find x. Again, to find x, we need a number. Whose square 49, students. So, student, first example is given, area of square is 144 centimeter square. Then what would be the side of the square? So, student, side of a square A, to find the length of side, it is necessary to find the square root of given number. And if x square is equal to 49, then value of x, we need a number whose square is 49. It means, student, in all the above cases, we need to find number whose square is known. इस दोनों केसों में देखते हैं हम स्टूडेंट्स कि हमें वो वेरिएबल फाइंड करना है जिसके स्क्वायर नोन है. a square is equal to 144 is known. Then what is the value of a? And x square is equal to 49. Then what is the value of x? So students, in all the above cases, we need to find number whose square is known. In all the above cases, student, in all the above cases, we need to find number. We need to find number whose square is given.
whose square is known, whose square is known। स्टूडेंट्स, तो हमने देखा फर्स्ट केस में भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देन square is given, then find the value of a, again x square is given and find the value of x। So in all the above cases we need to find the number whose square is known, students। So finding the number with known square, so finding the number, so finding the number, so finding the number with the known square is, with the known square is known square is known as finding the square root, known as finding the square root, and it is represented by root, students। So what is the square root, students? Finding the number with the known square is known as the finding the square roots, represented by this। इसकी मीनिंग क्या हुई स्टूडेंट्स? स्क्वायर रूट, व्हाट इज ए स्क्वायर रूट? ऐसे स्क्वायर नंबर्स गिवन हैं, ऐसे स्क्वायर नंबर्स गिवन हैं, तो वो किस नंबर के स्क्वायर हैं, दैट इज नोन एज स्क्वायर रूट। स्टूडेंट, यू आर स्टडीड 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इट मीन्स square number is given, students, square number 1 4 9 16 25, then what is a square root? ये 25 किस नंबर का स्क्वायर है? दिस इज नोन एज स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। स्टूडेंट, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का मतलब जो नंबर गिवन है वो कौन से नंबर का स्क्वायर होगा। फॉर एग्जांपल एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 144। स्टूडेंट, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 144। सो 144 का स्क्वायर रूट, 144 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट, 144 किसका स्क्वायर है, कौन से नंबर का स्क्वायर है? 144 इज ए स्क्वायर ऑफ 12। सो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 12। 900 का स्क्वायर रूट, 900 स्क्वायर नंबर है स्टूडेंट। इफ स्क्वायर नंबर इज गिवन देन व्हाट इज ए स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट वो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 900 आए। तो 30 का अगर हम स्क्वायर कर दें स्टूडेंट तो स्क्वायर रूट आ जाता है, 30 का स्क्वायर कर दें तो 900 आ जाता है। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12, स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30। तो स्क्वायर रूट की डिफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि जो भी नंबर गिवन हो उसका अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, इट मीन्स वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर ये नंबर आया है। 900 वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आया? 30 का। सो 30 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 900। 9 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 9 आएगा? 3।
स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। स्क्वायर रूट ऑफ 16 वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 16 आएगा, दैट इज 4। इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। स्टूडेंट, यू ऑल नो द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द एडिशन is a subtraction, and inverse process of the multiplication is division. Inverse process of division is a multiplication. Like that, inverse process of the square is known as square root. Students, in simple words we can say inverse process of the square is known as square root. So inverse process of square is known as square root. Inverse process or operation, inverse operation or process, inverse operation is known as inverse operation of square numbers is known as square root. Student, square root, and represented by this. So student, 1 into 1 is equal to 1, 2 into 2 is equal to 4. Then inverse process of this, so root 4 is equal to 2, root 1 is equal to 1. So inverse process of the square is known as square root. तो स्क्वायर रूट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। व्हाट इज ए स्क्वायर रूट? स्टूडेंट्स, finding the number with the known square is known as finding the square root. स्क्वायर रूट क्या है? स्टूडेंट, जो भी नंबर गिवन है वो किस नंबर का स्क्वायर रूट है ये देख लेते हैं, और जिस नंबर का स्क्वायर रूट होगा दैट नंबर इज नोन एज स्क्वायर रूट। तो ये हो जाता है स्टूडेंट स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के कितने मेथड्स हैं स्टूडेंट? हाउ मेनी मेथड्स टू फाइंडिंग द स्क्वायर रूट? सो देयर आर 3 मेथड्स स्टूडेंट। जो हमको सीखने हैं वो 3 मेथड्स हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के। सो फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। फर्स्ट, finding the square root, finding the square root through repeated subtraction, finding the square root by repeated subtraction method, repeated subtraction method. Students, repeated subtraction method. So स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट मेथड है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर दैट सम ऑफ द फर्स्ट n odd natural number? Do you remember that sum of the first odd natural numbers, sum of the first n odd natural number is equal to n square? Students, sum of the first n odd natural number, n odd natural number is equal to n square, is n square.
सो इसी के बेस पर हम लोग स्टूडेंट फाइंड करते हैं रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। फॉर एग्जांपल, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 by repeated subtraction method. Repeated subtraction method, students. So 100 square root of 100. So student 100 minus 1. ऑड नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? 1, 3, 5, 7, 9, 11। सो जो भी नंबर गिवन हो स्टूडेंट, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से फाइंड करने के लिए तो रिपीटेडली उसमें कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएंगे स्टूडेंट। 100 माइनस 1 99। देन स्टूडेंट 99 माइनस 3 96। देन स्टूडेंट 99 माइनस 5, सॉरी 96 माइनस 5। स्टूडेंट 100 माइनस 1 99, देन 99 माइनस 3 96, देन 96 माइनस 5 91, देन 91 माइनस 7। स्टूडेंट फर्स्ट 1, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9। तो स्टूडेंट 84, देन 84 माइनस 9, 84 माइनस 9 75, देन 75 माइनस 11, देन स्टूडेंट्स 64 माइनस 13, 11 then 13, then 51 minus 15 students, then 36 minus 17, then 19 minus 19 0। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, देन नंबर में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ऑड नंबर 1, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9, देन 11। ये हम सब्सट्रैक्शन तब तक करते रहेंगे जब तक कि यहां पर जीरो न मिल जाए स्टूडेंट। अब जीरो आ गया तो कितने स्टेप में हमने सब्सट्रैक्ट किया, नंबर ऑफ स्टेप इज नोन एज स्क्वायर रूट। सो स्टूडेंट ये देखो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 एंड 10 स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 100 is equal to 10. This is the repeated subtraction method student। कोई भी नंबर गिवन हो, कोई भी नंबर गिवन हो, उसमें ऑड नंबर को हम माइनस करते जाएंगे और जब जीरो आ जाएगा तो कितने स्टेप पर जीरो आया वो स्टेप काउंट कर लो, दैट इज द स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकंड वन मेथड स्टूडेंट्स, prime factorization method। second one, prime factorization method। second one students, prime factorization method। prime factorization method। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो उसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं और प्राइम फैक्टर को पेयर में बना करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देन बाय पेयरिंग द प्राइम फैक्टर्स,
So for example student, 729, अदरवाइज कोई भी नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट्स, 225, 225, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 225 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. Then student 225, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आना चाहिए स्टूडेंट. यूनिट प्लेस पर 5 है, इट मीन्स 5 से ये डिविजिबल होगा. 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा, देन 5 9 जा, देन 9 आया स्टूडेंट्स. डिविजिबिलिटी टेस्ट से 3 से डिवाइड है तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा. ये देखो यहां पर 1 आ जाना चाहिए, तो कितने प्राइम फैक्टर्स आए वो फाइंड कर लेते हैं बाय पेयरिंग द प्राइम फैक्टर्स स्टूडेंट्स, बाय पेयरिंग द प्राइम फैक्टर्स. सो प्राइम फैक्टर को पेयरिंग कर लेते हैं बाय पेयरिंग द प्राइम फैक्टर्स. 225 is equal to 5 into 5 into 3 into 3. So root 20 root 2 to 5. Square root of this number students, पेयर बना लो. हर पेयर से एक नंबर उसमें से ले लो. So स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15 स्टूडेंट्स. स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15. एंड वन अनदर एग्जांपल स्टूडेंट, 529. सो इसको देख लो स्टूडेंट, 7 से डिविजिबल है. सो 529. सो स्टूडेंट ये चेक करते जाएंगे, वहां 2 से नहीं डिविजिबल है, यूनिट प्लेस पर 9 नहीं है, तो यूनिट प्लेस पर 2 4 6 8 होगा तो ये डिविजिबल होगा. 2 से नहीं डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है. डायरेक्टली ये स्टूडेंट 23 से डिविजिबल है. 23 2 जा 46, देन 3 जा. ये प्राइम फैक्टर हो गया स्टूडेंट्स. 529 इज इक्वल टू 23 इंटू 23, देन रूट 529 इज इक्वल टू, पेयरिंग कर लो और हर एक पेयर से एक नंबर ले लो स्टूडेंट. दिस इज द स्क्वायर रूट. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, पेयरिंग करके हर एक पेयर से एक एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज द स्क्वायर रूट. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टूडेंट्स. डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड से कैसे हम फाइंड करते हैं वो सीख लेते हैं. लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिवीजन मेथड, अदरवाइज डिवीजन मेथड भी इसको कहते हैं. हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट स्टूडेंट. स्क्वायर रूट अगर हमें फाइंड करना है
सपोज 529 का ही स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पेयर में बनाएंगे नंबर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेयरिंग द गिवन नंबर टू द राइट साइड। राइट साइड से पेयर में बनाएंगे। ये देखो 29 बार बना दिया। अब इसके बाद एक ही नंबर रिमेनिंग है तो सिंगल ही रहेगा ये नंबर। स्टूडेंट, सपोज अगर कैसे कोई नंबर होता 4 6 5 9 3 2 1, इसको हमें पेयर करना होता तो हम फिर से राइट साइड से पेयरिंग करते। स्टूडेंट, ये 2, फिर 9 3 6 5 देन 4। तो स्टूडेंट, पेयरिंग इस तरह से करते हैं। लेफ्ट राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर लेफ्ट साइड में ओनली 1 डिजिट बचता है तो उसको भी हम बार में ले लेते हैं। तो ये देखो 29 के ऊपर भी बार लगाया हमने, 5 के ऊपर भी बार लिया। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। सो स्टूडेंट, ये हम टेबल का यूज करेंगे। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो देख लेंगे इसमें कौन से नंबर का स्क्वायर 5 है, अदरवाइज लेस देन 5 है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बट कौन से नंबर का ऐसा स्क्वायर है जो कि 5 के नियर अबाउट है? तो 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट, तो अब हम यहां पर 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और यहां पर 2। यहां पर जो नंबर आया उसमें 2 प्लस करेंगे, ये माइनस कर देंगे। स्टूडेंट, इधर प्लस हो जाता है। 2 + 2 4। देन ये पूरा पेयर हम ले लेंगे। तो 5 - 4 1 29। अब स्टूडेंट, यहां पर कौन सा ऐसा नंबर पुटअप करें कि 129 हो जाए, अदरवाइज उससे कम रहे? कौन सा नंबर पुटअप करें? तो इसके लिए एकदम सिंपल आइडिया होती है। ये देखो, इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये टेबल हमें पता होना चाहिए। 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 26, then 7 × 7 49, 8 × 8 64, 9 × 9 81, 10 × 10 100। तो यूनिट प्लेस पर स्टूडेंट क्या है यहां पर? 9। 9 कब आता है? 9 3 में आता है, 3 के स्क्वायर पर। और 9 किस में आता है स्टूडेंट? 7 के स्क्वायर पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां 3 पुटअप करके देख लेंगे। ये देखो यहां पर 3 हमने पुटअप किया, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। यहां भी 3 ले लेंगे हम। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अगर 3 से नहीं होता तो यहां 7 पुटअप करके देख लेते, क्योंकि 2 ही नंबर में 9 आने वाला है स्टूडेंट। तो ये एस्टिमेशन मेथड से ये ले लेते हैं। तो 3 129 माइनस कर दिया 0। इट मीन्स √529 इज इक्वल टू 23। स्टूडेंट, इस तरह से हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट। तो इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का फिर से स्टेप समझ लेंगे स्टूडेंट। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। स्टेप 1 स्टूडेंट, place a bar over every pair of digit starting from the digit at ones place. Place a bar over every pairing of the digit starting from the digit at ones place. If number of digit in it odd, then leftmost single digit 2 will have bar. Thus we have 529. Students, find the largest number whose square is less than or equal to the number under the
extreme left bar. Then student, bring down the number under the next bar and then double the quotient and enter it with a blank on this right side. So next step, guess the largest possible digit, fill the blank which will also become the new digit in the quotient such that when new divisor is multiplied to new quotients, the product is less than or equal to dividend. Students, since remember is 0 and no digit are left in the given number, therefore root 529 is equal to 23. Students, so क्या करते हैं स्टूडेंट, 529 हमने फर्स्ट नंबर लिया 529, वंस डिजिट से हम पेयरिंग करेंगे, बार बनाएंगे। अगर नंबर ऑफ डिजिट ऑड है तो लास्ट में एक ही नंबर बचने वाला है, अगर नंबर ऑफ डिजिट इवन है तो दोनों हो जाएंगे। स्टूडेंट ये देखो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 529 का था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 4096, 4096. So students, place a bar over every pair of digit starting from the ones digit. Place a bar every pair of the digit. हमने place कर दिया बार को from ones digit. So step 1 is completed. Student, place a bar over every pair of digit starting from the ones digit. So student, find the largest number whose square is less than. Find the largest number whose square is less than or equal to 40. So second step student, find the largest number whose square is less than or equal to number under the leftmost bar. So 40, then 6 square and 7 square. स्टूडेंट ये देखो, 6 स्क्वायर लेस देन 40 लेस देन 7 स्क्वायर, देयरफॉर यहां पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, 6 इक्वल टू और लेस देन होना चाहिए, तो 6 स्क्वायर लेस देन है, ये ग्रेटर देन हो जाता है, देयरफॉर 6 स्क्वायर लेंगे। सो 6 36। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप, bring down the number under the next bar. Bring down the number under the next bar. ये माइनस करो 4, bring down the number under next bar 496. स्टूडेंट 496, then double the quotient and entered it the blank on it right side. Double the quotients. Quotient 6 है, so 6 and 6 12. Double the quotient 12 लेंगे स्टूडेंट, यहां पर double the quotient 12 students. Double the quotient and enter it with blank on its right. Guess largest possible digit to fill in the blanks, which also becomes the new digit in the quotient, such that when the new digit is multiplied to new quotient, product less than or equal to dividend. So dividend क्या है स्टूडेंट, 496। यहां थर्ड नंबर पर अब हम ऐसे नंबर को सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, थर्ड नंबर पर ऐसे नंबर को सिलेक्ट करेंगे जिसका स्क्वायर करने पर इससे लेस देन हो। तो यूनिट प्लेस पर क्या है स्टूडेंट, 6, तो यूनिट प्लेस पर 6 कब आता है, ये देखो 4 हो तो 6 आता है एंड 6 हो तो 6 आता है। तो 4 लेकर ट्राई करते हैं, पहले 4 लो, इट मीन्स 4 एंड यहां कोसेंट में भी 4,
4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, 4 1 जा 4 इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64। ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टूडेंट्स। क्या करते हैं, यूनिट डिजिट से बार प्लेस करते हैं पेयर डिजिट पर, देन ऐसे नंबर को थिंक करते हैं जिसका स्क्वायर 40 हो, अदरवाइज लेस देन 40 हो। तो 6 का स्क्वायर लेस देन 40 है, 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन 40 है, एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं है तो यहां 6 ले लिया। देन यहां डबल कर देते हैं कोसेंट का, 6 2 जा 12, अदरवाइज यहां प्लस करके लिख दो। अब ये थर्ड प्लेस पर कौन सा नंबर पुटअप करें कि 496 के इक्वल हो, अदरवाइज लेस देन हो। तो 496 में यूनिट डिजिट क्या है स्टूडेंट, 6। तो 6 तभी आएगा जब या तो यूनिट डिजिट में 4 होगा या तो 6 होगा। देन पहले 4 पुटअप करके देखा तो एग्जैक्टली आ गया। सो दिस इज द राइट वे। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर डेसिमल वाले नंबर गिवन हो तो कैसे हम फाइंड करते हैं। डेसिमल वाले नंबर गिवन हो 17.64, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 स्टूडेंट्स। सो 17.64, step 1 student, to find the square root of the decimal number, we put bar on the integral part, that is 17 of the number in usual manner, and place bar on the decimal part। तो स्टूडेंट जब डेसिमल वाले नंबर होंगे तो डेसिमल वाले पार्ट पर अलग से पेयरिंग करके बार पुटअप करेंगे, होल नंबर पर अलग से पेयरिंग करके बार पुटअप करेंगे। फॉर एग्जांपल डेसिमल के लिए ये देखो यहां से, और होल नंबर के लिए ऐसा, बीच में डेसिमल नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है स्टूडेंट 214, तो ऐसा बार नहीं होगा, दोनों को सेपरेट करके लेंगे, डेसिमल के लिए अलग से और होल नंबर के लिए अलग से। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर ये होता तो 0 कर लेते हैं हम डेसिमल वाले पार्ट में। सो ये हो जाता इस तरह से और ये ऐसे। अदरवाइज स्टूडेंट ऐसा दिया है 335.17, तो ये इस तरह से हो गया और ये ऐसा हुआ। तो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, डेसिमल वाले पार्ट को अलग से लेंगे और परफेक्ट नंबर को अलग से लेंगे। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, वी पुट बार ऑन द इंटीग्रल पार्ट, that is 17, and decimal part, that is 64 स्टूडेंट्स। तो इसमें अलग अलग लेंगे, इंटीग्रल पार्ट अलग, डेसिमल पार्ट का अलग से बार पुटअप करेंगे। अब देखो अब स्टूडेंट यहां पर हो जाएगा ये 17, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो 4 यहां लिखेंगे, 4 जाएगा कोसेंट में, 4 4 जा 16, -1 आया डेसिमल, इसके बाद ये टोटल नंबर इधर ले लेंगे स्टूडेंट 64, एंड 2 टाइम ऑफ द कोसेंट यहां आ जाएगा 8, अदरवाइज इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं। देन यहां पर एक नंबर ऐसा चूज करेंगे कि लेस देन आर इक्वल टू 164 हो स्टूडेंट। तो देखो 4 कब आता है यूनिट प्लेस पर, 2 हो तो 4 आएगा, यूनिट प्लेस पर 2 हो तो 4 आता है, और 8 हो तो 4 आता है। तो 2 पुटअप करके देख लेते हैं स्टूडेंट। यहां यूनिट प्लेस पर हमने 2 पुटअप किया, सो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये। So square root of 17.64 is equal to 4.2 स्टूडेंट। इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं
डेसिमल पार्ट को। जब डेसिमल वाले नंबर्स आएंगे स्टूडेंट्स तो इंटीग्रल पार्ट को अलग से बार रिप्लेस करना है और डेसिमल वाले में अलग से बार रिप्लेस करना है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट स्टूडेंट। थैंक यू।